Hello everyone. Welcome to second semester chapter 8 Introduction to Microsoft Access. Myself Preeti Godham welcomes you to this video. In this video we will discuss about MS Access. So what is MS Access? MS Access is a database creation and management of programs. That means in this we can create our database as well as we can manage our database. To understand Microsoft Access, first of all, we must know about database. What is database? That means when we are organizing and maintaining the data in an organized manner so that it can help us for any of our department. That means when we are creating any of the database or any of the table, with the help of this, we can search, find, or retrieve the information easily. So what is database? Database, we can call it as DB also. DB or database is the basically collection of information organized in such a way that computer programs can quickly select a desired piece of data. First of all, what is data? The raw information which we are getting is called as data. When we are filling this information in the computer and collecting all the data regarding to the particular item, then it is called as database. When we are getting a single piece of information, then it is called as data. When we are getting a detailed information about anything, then it is called as database. And when we are storing these things in our computer so that we can easily modify, we can extract the information, we can store it in our system, that is called as database management system. So what is DBMS? Database management system is the collection of programs where you can store, modify, and extract the informations easily on your system. So we can use the terms like relational, like network, flat, and hierarchical. All these words are related to DBMS. That means we can find out, we can search out, we can maintain, we can store the data easily in our system that can be quickly searched and flexibly extract form of the information. This is called as the database. Okay. Now database के कौन से popular solutions? So DBMS includes database 2, Oracle, FileMaker, MySQL and Microsoft Access. DBMS हम इन सारे सॉफ्टवेयर्स पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम यूज करने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है. All the request form of the database are made in the form of query. जितने भी आपके डेटा होते हैं उसको हम क्वेरीज के फॉर्म में बनाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेरी? द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डेटा. अगर आप किसी डेटा को बना रहे हो तो आप एक रूल फॉलो कर रहे हो. जैसे आप स्कूल आ रहे हो तो टाइमिंग्स फॉलो कर रहे हो, पीरियड्स के टाइम्स फॉलो कर रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो. वैसे ही अगर हम डेटाबेस बनाते हैं तो वहां पर भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है. तो in which format you are going to prepare your table, that is discussed under the queries section. Then report. When we are printing the data on our paper, that is called as the report. जब आप कोई डेटाबेस बना रहे हो तभी सिर्फ सिस्टम पर है. जब आप उसको पेपर पर प्रिंट कर लोगे, फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, तो उसको हम रिपोर्ट बोलेंगे. जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको एक रिपोर्ट मिलती है. वो क्या है? आपकी बॉडी टेस्ट पे एक रिपोर्ट बनी है जिसको पेपर पे प्रिंट करके दिया है. दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट. ऐसे ही आपका रिपोर्ट कार्ड होता है. आपने सेमेस्टर 1 कंप्लीट किया तो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला. वो रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपका स्टडी लेवल, कि आप कितना स्टडी कर रहे हो, आपका क्या लेवल है, दैट इज शोन इन दैट रिपोर्ट कार्ड. तो वो चीजें क्या है? जब पेपर पर प्रिंट होके आपको फाइनल रिजल्ट बताती है, दैट इज कॉल्ड एज report. The next one is Relational Database Management System, RDBMS. RDBMS was introduced in 1970 by Edgar Frank Codd. This theory is called as the Relational Database Theory.
है ना। इस रिलेशनल डेटाबेस थ्योरी के अंदर डीबीएमएस और आरडीबीएमएस दोनों को यूज करते हैं हम किसी भी डेटा को बनाने के लिए। वहां पर हम इंडेक्स की, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल्स और उनके रिलेशनशिप्स को डिस्कस करते हैं, बिकॉज उसका नाम ही यही है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब किसी डेटाबेस दो डिफरेंट टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन डेवलप होता है तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। और ये रिलेशन हम प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज और टेबल्स के बीच में बना सकते हैं। अगर हमारी किसी भी टेबल में प्राइमरी की अवेलेबल नहीं होती है तो हम डेटाबेस को रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइमरी की ही एक ऐसी की होती है जिससे दो डिफरेंट टेबल्स कनेक्ट होती है। यहाँ पर अब हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हम अपने डेटाबेस के लिए यूज करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के क्या डिफरेंसेस हैं। तो जो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के डिफरेंसेस है वो हम देख रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड आरडीबीएमएस, इन दिस relationship among table is maintained in a RDBMS. RDBMS में क्या बनता है, relationships बनते हैं, but in the case of DBMS we are not managing such type of relationships. DBMS जो फाइल है वो फ्लैट फाइल को एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स बिना रिलेशनशिप वाली फाइल को, जहां पर डेटा हर एक टेबल के अंदर डिफरेंट होता है। बट आरडीबीएमएस ऐसा नहीं करती है, वो सिर्फ रिलेशनशिप वाली फाइल को एक्सेप्ट करती है, दैट मीन्स जिसके अंदर जो डेटा है वो डिजाइन्ड टाइप का होगा, किसी ना किसी टाइप में, किसी ना किसी वे में वो दूसरी टेबल से कनेक्टेड होगा। डीबीएमएस इज यूज्ड फॉर सिंपलर बिजनेस। जब आप छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाते हो, नई नई एप्लीकेशंस जब आप डिजाइन करते हो तब आप डीबीएमएस यूज करते हो, लेकिन आरडीबीएमएस इज यूज्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। आपकी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के लिए आरडीबीएमएस फाइल यूज होती है। बोथ द फाइल्स आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस सपोर्ट द प्राइमरी की एंड फॉरेन की, बट ओनली आरडीबीएमएस एनफोर्सेस दिस रूल। मतलब आरडीबीएमएस के अंदर ये होना ही चाहिए, बट डीबीएमएस दोनों को सपोर्ट करता है। आरडीबीएमएस में अगर फॉरेन की और प्राइमरी की नहीं है तो टेबल एक्सेप्ट नहीं करता है। RDBMS solution is required by large sets of data, whereas small set of data can be managed by DBMS. बहुत बड़ा अगर डेटा है तो RDBMS से हम मैनेज करेंगे, मतलब मल्टीपल टेबल्स को रिलेट करेंगे। लेकिन अगर छोटा डेटा है, कम इंफॉर्मेशन है, कम फील्ड्स है, तो हम DBMS के थ्रू डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब जो हमने वर्ड्स यूज करे हैं, टेबल, रिकॉर्ड, फील्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे टेबल। आप सभी जानते हो टेबल क्या होती है, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। जो एक डेटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम टेबल बोलते हैं। इस टेबल के अंदर जो भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में कलेक्ट होती है। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है टेबल के अंदर, जिसको हम वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट होता है रिकॉर्ड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट टेबल के अंदर, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टूडेंट इज नॉन एज रिकॉर्ड। दैट मीन्स वी कैन से दैट a complete information about a individual is called as record. और फील्ड उसी का जस्ट अपोजिट, a different information about a particular different persons, जहां पर डिफरेंट पर्सन है लेकिन फील्ड सेम है, कॉलम सेम है। दैट मीन्स अगर हम पूरी टेबल के अंदर बात करें तो अलग अलग बच्चों के एक जैसे सिर्फ टेबल के अंदर रोल नंबर होंगे। रोल नंबर वैरी करेंगे लेकिन है क्या, सेक्शन क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर होंगे, लेकिन बच्चे कैसे हैं, अलग अलग, अलग अलग बच्चों के रोल नंबर्स, वो क्या कहलाएंगे, फील्ड। फील्ड को हम कॉलम भी कह सकते हैं। The next one is forms. Forms where we can add, modify और view the record is called as forms. जहां पर हम अपने डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, that is called as forms. Then next होता है queries. Queries क्या होता है, जब हम किसी टेबल को एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरी टेबल के अंदर, मतलब किसी डेटा को दूसरी टेबल के अंदर कनेक्ट करना, उसके इंफॉर्मेशन को मैच करना, वो क्वेरीज कहलाती है। और मैंने अभी जस्ट बताया रिपोर्ट्स क्या होती है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन अवर पेपर, द फाइनल आउटपुट ऑफ अवर पेपर ऑन अ पेपर इज कॉल्ड एज रिपोर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस।
डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेज है? तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है डीबीएमएस का कि यहाँ पर नो डेटा रिडंडेंसी होती है। दैट मीन्स कभी भी यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, कभी एक जैसे दो मोबाइल नंबर नहीं होंगे, कभी भी एक जैसे दो व्हीकल नंबर नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नो डेटा रिडंडेंसी। दैट मीन्स डुप्लीकेशन डेटा नहीं होगा टेबल के अंदर। फैसिलिटेट्स फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा आप शेयर कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट में या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी शेयर करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। उसका मतलब ये होगा कि अगर आप शेयर कर रहे हो तो आपकी फाइल का फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। जैसा आपके पास है वही सेम फॉर्मेट की फाइल सामने वाली रिसीवर टीम को भी मिल जाएगा। चेक्स डेटा इनकंसिस्टेंसी, चेक्स डेटा इनकंसिस्टेंसी दैट मीन्स अगर आपकी टेबल के अंदर दो एक जैसी एंट्री आ गई है तो आपको बता देगा कि डुप्लीकेट डेटा है आपके पास में, वो ऑटोमेटिकली मर्ज कर देगा अगर कोई डुप्लीकेट डेटा है तो, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट होता है एनफोर्सेस एंड स्टैंडर्ड्स। Enforces standard that means it applies certain standards means the format of the data need to be same for the related fields। जैसे कि अगर आप कोई फाइल कॉपी कर रहे हो और कॉपी करते वक्त अगर आपकी फाइल के फील्ड्स सेम नहीं है तो वो डेटा फॉर्मेट आपका मैच नहीं करता है। ठीक है, तो वो हमेशा तभी डेटा आप कॉपी कर पाओगे जब आपका डेटा फॉर्मेट एक जैसा होगा। Ensures data security, अगर कभी आप अपनी फाइल्स शेयर करना चाहते हो और लेकिन चाहते हो कि वो सब एक्सेस ना कर सके, कोई पर्टिकुलर पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके, तो आप उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब आप पासवर्ड लगा दोगे तो आपकी फाइल सिर्फ पासवर्ड के थ्रू ही ओपन होगी। जैसे अभी हम सब अपने फोन में पासवर्ड लॉक लगा के रखते हैं, तो क्या होगा, जिसको मैंने लॉक बताया है सिर्फ वही आपके फोन का लॉक ओपन कर सकता है, बाकी नहीं। ऐसे ही जब हम अपनी किसी एक्सेस फाइल को शेयर करते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते उसके इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लेंगे। द लास्ट एडवांटेज इज मेंटेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी हम कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स है या कोई इंफॉर्मेशन है जो ऐसी है जो ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है, तो उसके रेंज हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट मार्क्स का। स्टूडेंट मार्क्स के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स कितने उसके अंदर फिल कर सकते हैं, 0 से लेके 100 तक। तो हमने उसकी एक रेंज सेट कर दी है कि 0 से 100 तक के ही मार्क्स उसके अंदर डलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आप 101 डालने चाहोगे तो आपको बता देगा रॉन्ग डेटा एंटर्ड, या फिर वो आपको एरर दे देगा, या फिर वो आपको टाइप ही नहीं करने देगा। ओके, तो ये ऐसे हम इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कोई डेटा आप उसके अंदर एंटर करना चाहते हो तो उसका एक रूल बना दो कि सिर्फ यही नंबर्स होने चाहिए, यही लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कहीं कहीं आप पासवर्ड्स किसी में डालते हो तो वो आपको एक रूल फॉलो करवाता है। पासवर्ड के अंदर आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल सिंबल्स भी होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो आपको पासवर्ड नहीं क्रिएट करने देता है। तो ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ हम रूल फॉलो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेंटेन इंटीग्रिटी। This is all about our today's video. I hope this video is clear to you. Thank you students for watching this video.